देखो, फाइनेंस का मेरा आइडिया ये है कि गेटिंग द फ्रीडम और गेटिंग द प्रिविलेज टू डू वट एवर यू वांट टू डू। तो अगर मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूँ तो मेरा सिर्फ मकसद यही है, मैं किसी भी रीज़न के चलते अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। जैसे कि जस्ट टू अर्न सम अमाउंट ऑफ मनी, जस्ट टू हैव समथिंग इन माई लाइफ, आई कैनॉट एक्सप्लॉइट माई लाइफ, आई कैनॉट सेक्रीफाइस माई लाइफ। व्हेन आई एम सेइंग लाइफ, मैं ये बात नहीं कर रहा कि मैं अपनी ज़िंदगी हार दूंगा। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ, द एंटायर लिविंग एस्पेक्ट, जैसे मैं जी रहा हूँ, दैट एस्पेक्ट आई कैनॉट सेक्रीफाइस और आई कैनॉट give it to somebody because of something I want. So this life is something that I have and I think this is something that I'm going to enjoy for the rest of my life. जितने समय तक मैं ज़िंदा हूँ, this is something that I'm going to enjoy. चाहे मेरे पास कुछ हो ना हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. This is something that I should preserve as much as possible. जितना ज़्यादा हो सके मैं उतना ज़्यादा इसको रखने की कोशिश करूँगा और उतना ज़्यादा मैं इसको एंजॉय करने की कोशिश करूँगा. So किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जो मुझे एक्स्ट्रा माइंड में प्रेशर दे रहा है जस्ट टू मेक इट, जस्ट टू बिल्ड इट, तो मुझे नहीं लगता वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू दिस वन. सो वेर एवर देर इज़ अ कंपटीशन बिटवीन लाइफ और समथिंग एल्स, आई विल ऑलवेज चूज लाइफ. So this is the main मकसद of me going after finance, because finance is one of those things which gives you a certain privilege, जिसके चलते ना आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में आसान कर सकते हैं. You do not have to put your life into it and waste your life energy into things, making things that is not so much important. But if you have money with yourself, you can just make it happen for you. So that is the main reason, main intention behind which I am just going after money. क्योंकि ये मेरा मेन इंटेंशन, मेन रीज़न है पैसे कमाने का. सो आई ऑलवेज चूज़ और आई ऑलवेज यूज़ मनी टू मेक माई सेल्फ फ्री, so get the freedom for myself. So I do not buy this or that with money, I always buy freedom for myself. So मेरा मेन मकसद of trying to earn money is to buy freedom. अगर ये वाला किस्सा आपके साथ भी है, आप भी अगर अपनी ज़िंदगी को और एक्सप्लोर करना चाहते हो, what is it about, what is yoga is about, so to get there, to have all these things, you have to have a financial freedom. Because जब तक हम फाइनेंशियली फ्री नहीं होते तब तक आप किसी भी चीज़ में अच्छे से दिमाग नहीं लगा पाओगे. वट एवर यू विल डू, यू विल ऑलवेज थिंकिंग अबाउट मनी. अगर आपके पास पैसे ना हो, डिस्पाइट ऑफ दैट ऑल्सो यू कैन बी एबल टू फोकस ऑन समथिंग, तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है. बट जब तक फाइनेंशियली फ्री नहीं होते तब तक आप किसी चीज़ में प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाओगे. सो बेस्ट दैट यू गेट फाइनेंशियली फ्री योरसेल्फ, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, यू नो. तो अगर आप कर लेते हो ये चीज़, तो फिर slowly gradually things will fall into place and you will be able to focus on the things that matters to you. तो to get yourself financially free, you have to understand that how you are living your life. वाकई में क्या आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए आपका लाइफ इम्पोर्टेंट है and you want to buy freedom for yourself or you want to buy bondage for yourself. देखो, दोनों चीज़ लोग करते हैं. आप अगर लोगों की वे से जाओगे, then people will do so many things, people will bind themselves with so many things and then they feel like I want this, I want that, and they go on just talking about, you go on just trying to gather things more and more and more. So in that aspect, you are not going to get enough amount of money through which you can be able to free yourself from these bondages. So agar you want everything in the world, then whatever money you'll get, it's not going to be enough. But if you want to just get freedom for this one, then you have to take care of the basic needs, okay, जैसे food, shelter, clothes, and then health. So health is one of the important aspect which is not certain, which is very uncertain in nature, because you do not know what will happen to you in which condition, and how much is gonna cost you to get this one fixed. But apart from the health, rest of the things are quite easy to calculate. Again, it is not 100% surety that, I mean, it is not certain that something is definitely going to happen to you. I mean, there are people who are living for 50, 60, 70, 80 years and nothing is happening to them. But it was quite early, मतलब पहले के टाइम में ऐसा होता था. पर अभी के टाइम में तो कोई ना कोई किसी न किसी बीमार में पड़ ही जाता है. सो अगर आप फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, ये जो बेसिक नीड्स हैं, इसको आप टेक केयर कर लेते हो, उसके बाद जो मेडिकल वाला एस्पेक्ट है, अगर कुछ खुदा न खास्ता गलत हो जाए तो उसके लिए भी अगर कुछ फाइनेंशियल प्रिपेयर करते हो, देन आई वुड से दिस इज़ द एनफ अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ गुड एनफ फॉर योर फाइनेंशियल फ्रीडम. जिसके बाद ना आप अगर कुछ भी काम करते हो ना, देन व्हाट यू विल डू इज़ यू विल बी डूइंग इट ओनली फॉर योर सेल्फ, बिकॉज इट मैटर्स टू यू.
ऐसा आप कुछ भी नहीं करोगे जो आपके लिए मैटर नहीं करता। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग वो भी करने के लिए तैयार हैं जस्ट बिकॉज इट इज़ पेइंग देम। और मैं ये नहीं कह रहा कि ट्राइंग टू अर्न मनी आउट ऑफ डूइंग समथिंग दैट यू डू नॉट लाइक इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ क्राइम। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। आपको पैसे चाहिए, पैसे इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बाय द फ्रीडम। तो वाट एवर यू डू इट, बट आपको अंडरस्टैंड ये करना चाहिए कि आप उसके लिए लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। सपोज समथिंग इज़ गिविंग यू एनफ अमाउंट ऑफ मनी, सो यू जस्ट गो एंड डू इट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अंटिल यू गेट और गैदर सम अमाउंट ऑफ मनी। उसके बाद आप फिर अपने ज़िंदगी पे फोकस करो कि जो चीज़ आपके लिए मैटर करता है वो करो, ठीक है। नाउ ये चीज़ अगर आपने समझ गए तो देन विल गो इनटू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है नॉट लूप होल्स, पोर्ट होल्स और सम सॉर्ट ऑफ होल्स। जैसे कि आप अगर एक मटके में पानी रखने की कोशिश करोगे एंड देयर विल बी होल्स इन दैट मटका ना, तो फिर पानी गिर जाएगा, वो रहेगा नहीं मटके में। तो इसके लिए यू हैव टू फिक्स दस होल्स फर्स्ट, ओके। अगर आपने वो होल्स फिक्स किए तो फिर वो मटका बहुत जल्दी भर जाएगा पानी से एंड यू विल बी एबल टू गेट द फाइनेंशियल फ्रीडम। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पानी, आई एम टॉकिंग अबाउट मनी, और मटका मीन्स अपना लाइफ, जहाँ पे भी आप अपना पैसा रख रहे हो। सो मेक श्योर कि पैसा आपका बढ़े ना कि घटे। अगर एक टूटे मटके में आप पानी रखते हो ना, तो धीरे धीरे करके पानी वो सिप इन होता जाता है, सिप आउट होता जाता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और आपसे पैसा वहाँ से चले जा रहा है। सो उन दोज होल्स को अगर आप फिक्स करोगे देन ओवर द टाइम दोज मनी विल बी गिविंग यू सम सॉर्ट ऑफ अ रिटर्न दैट आफ्टर सर्टन पॉइंट यू विल बी एबल टू सी दैट यू आर फाइनेंशियली फ्री, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ आपसे पैसे लेके जा रहे हैं, जो मंथली सब्सक्रिप्शन है आपकी ज़िंदगी के, उन चीज़ों को आपको बंद करना होगा। नाउ जो बेसिक नीड्स लगता है हमें, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, तो ऐसा हो सकता है कि आप नॉर्मल धोती में भी रह सकते हो, है ना, पहन के, इट्स बिकॉज इट्स अ पीस ऑफ क्लोथ, बट यू वांट सूट, यू वांट दिस दैट एंड 10 डिफरेंट सूट। आपको लगता है दिस इज, आई मीन क्लोथ इज़ अ नीड, बट सूट मे नॉट बी, यू नो। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू सी कि मुझे क्या एग्जैक्टली चाहिए। अगर आप एक धोती में भी रह सकते हो देन धोती विल बी ए गुड इनफ, है ना। अगर आप खाने की बात करो देन गुड अमाउंट ऑफ फूड यू विल बी एबल टू गेट इन जस्ट सम limited amount of money. But if you want to go to some 5-star restaurant and try some like foreign cuisine or something, then definitely it's going to cost you more money. So if you just go on based on your taste, go on based on your like appealing clothes or something, then it is going to be difficult for you to manage your money. I'm not saying it is not possible, but again आपका जो बार है ना, जो फाइनेंशियल फ्रीडम का, वो ऊपर चला जाएगा। अब अगर बेसिक नीड्स की आप कैलकुलेशन कर रहे हो, देन व्हेन आई कैलकुलेटेड माय बेसिक नीड्स, सो आई फाउंड इट लाइक विदिन 10,000 रुपीज़ पर मंथ इट इज़ गोइंग टू बी गुड एनफ फॉर मी इंक्लूडिंग दिस इन्फ्लेशन। तो आई कैलकुलेटेड दैट 10,000 रुपीज़ एंड आई मल्टीप्लाइड 10,000 रुपीज़ इंटू 1200. Now why 1200? 1200 means in 1 year there is 12 months. So the amount of money into 12 months is equal to the amount of money that you need in a year. Now this amount of money that you need in a year multiplied by 100 means for 100 years. See, for sure we are not going to live for 100 years, right? And I'm already 25, so 25% of my life is already gone. And from your 70%, 75%, I am sure that I am not going to live the next 75% for sure. तो उसमें से भी 5-10 साल तो वैसे ही कट जाएंगे। मुझे अगर 15 साल भी कटता है, मैं मान के चलूँ तो 60 years आई विल बी लिविंग फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, बट आई एम कैलकुलेटिंग इट फॉर 100 years. So 40% part of the finance you can take it as health insurance. Okay, I'm not asking you to buy a health insurance, which is again a good option if you want, but I'm not taking it as health insurance, but it is a sort of money which is saved for your health. Okay, it's an emergency fund, you may say. Rest of the money that you have calculated for 60 years, you can use that money for next 60 years and live a very simple life, very simple life. So if you can live such a life and you have some sort of financial freedom and you do whatever you want, but make sure कि this set of money is not getting wasted. And this set of money has to be stored separately, and rest whatever you are doing, if you are earning more money, you can spend it on whatever you want. Especially you should spend it on the things that matters to you. जो चीज़ आप करने की कोशिश करो उसमें अगर आप reinvest करते हो चीज़ों को, तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है आपके ऊपर. You want to build something, you can build something. You want to create something, you can create something. You want to spend, just spend. Whatever you want to do, you can do. But
दिस सेट ऑफ मनी, दिस बेसिक फाइनेंशियल फ्रीडम हैज़ टू बी देयर, बिकॉज ये फाइनेंशियल फ्रीडम आपको इंश्योर करता है कि इफ़ योर बिजनेस गेट लॉस्ट टुडे, अगर आपको बिजनेस खत्म हो जाता है और आप जो कर रहे हो वो कुछ उसका मैटर नहीं करता, देन डिस्पाइट ऑफ दैट ऑल्सो यू कैन बी एबल टू लीव योर लाइफ कंफर्टेबली. सो कभी भी मन करे आप किसी भी चीज़ को छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, यू विल हैव दैट प्रिविलेज. तो ज़िंदगी में आपको दोबारा से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अगर मैं जॉब नहीं किया रहा तो क्या हुआ मेरा, क्या होगा मेरा. तो इट इज़ एसेंशियल फॉर यू टू हैव दिस फाइनेंशियल फ्रीडम. तो ये मेरा बेसिक कैलकुलेशन करने का मेथड था कि वट एवर द मनी दैट यू थिंक यू नीड इन ए मंथ, जस्ट मल्टीप्लाई दैट विद 1200, यू विल गेट इट. और ट्राई करो ऐसे कि जितना लाइफ सिंपलिस्टिक हो उतना सिंपलिस्टिक जियो, क्योंकि जितना आप कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करोगे लाइफ और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी. जैसे कि इफ़ यू थिंक अ बाइक इज़ अ नीड फॉर मी, तो अगर आप बाइक बाई करते हो तो उसका मेंटेनेंस भी होना पड़ेगा, उसका पेट्रोल चार्ज भी जाएगा. अगर आप कार खरीदते हो तो मेंटेनेंस उसका और ज़्यादा जाएगा और उसका पेट्रोल भी जाएगा. ठीक है, तो उस बेसिस के चलते ना आपके जो पैसे हैं वो देयर विल बी मोर होल्स इन द सिस्टम. तो इट विल गोइंग बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज इन दैट वे टू गेट टू द फाइनेंशियल फ्रीडम. सो इट इज़ एसेंशियल फॉर यू टू लिव योर लाइफ मोर सिंपलिस्टिकली. अगर आप ये कर लेते हो देन एटलीस्ट यू हैव अ सेंस ऑफ फ्रीडम. उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हो. मेरा बस यही कहने का मतलब मेरा बस यही कहने का पॉइंट है कि ज़िंदगी इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग इन द लाइफ एंड देयर इज़ नथिंग एल्स. तो पहले ज़िंदगी को सिक्योर एंड देन वट एवर यू डू. सो दैट इज़ इट ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ अ लिटिल बिट मोर अबाउट बिजनेस, जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और देयर इज़ अनदर वे ऑफ ऑल्सो अर्निंग मनी, और इनमें क्या डिफरेंस होता है और क्या करना सही है और किस इंसान के लिए करना सही है. सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो.